हेलो एवरीवन, प्रीवियस क्लास हम लोग इस क्वेश्चन पे क्लास खत्म किए थे। थोड़ा सा रिकैप करना चाहूँगा क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आज करने वाले हैं हम लोग। कोई एक कंडक्टर में पहले हम देखेंगे कि कोई कंडक्टर में ईएमएफ कब इंड्यूस होता है, ईएमएफ क्यों इंड्यूस होता है। मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फैराडेस लॉ, आई एम टॉकिंग अबाउट द बेसिक्स ऑफ इंडक्शन ऑफ ईएमएफ। कोई कंडक्टर में ईएमएफ क्यों इंड्यूस होता है? Because when the conductor moves, the charges also move with that, and they experience a force, that is the magnetic force in the magnetic field. So they separately positive and negative charges go to the other ends of the opposite ends of the conductor, and in EMF is developed. कब होता है? जब कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तब होता है? नहीं, जरूरी नहीं है। कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने से ईएमएफ होगा, जरूरी नहीं है। ईएमएफ तो तब होगा जब मैग्नेटिक फोर्स के चलते चार्जेस अदर एंड में जाने के लिए जगह मिलेगा उनको। मतलब अगर कंडक्टर के पास कोई लेंथ है परपेंडिकुलर टू वी एंड बी, बिकॉज द मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वी एंड बी। सो अगर कंडक्टर इज हैविंग सम लेंथ परपेंडिकुलर टू वी एंड बी, then only some EMF will be induced in it. Fine. And here was the case. Here you have a conductor of length L moving with a velocity v in a direction perpendicular to the length. सारा क्राइटेरिया को देख लेना। How is the velocity? Velocity is perpendicular to the length in a transverse magnetic field, means the magnetic field is perpendicular to V and L. You clearly see that this conductor has some length which is perpendicular to V and perpendicular to the magnetic field also. Okay, इसमें कुछ EMF होगा। If this conductor moves with a velocity v, तो आप कहोगे ऐसा एक मैग्नेटिक फील्ड में इस कंडक्टर के अंदर होता हुआ जो पॉजिटिव चार्ज है, that positive charge will experience a force in upward direction. So the positive charges will come here, negative charges will be coming here, and this conductor can be equivalently represented as a source of EMF like this. What is the magnitude of that EMF that we have calculated? For that we take help of Faraday's law. Faraday's law कहता है कि the EMF induced in MKS unit system, ध्यान रहे, in MKS unit system is equal to d5 by dt. तो हमें देखना है कि dt सेकंड में कितना फ्लक्स कट कर रहा है। d5 is the amount of flux cut by the conductor in the time of dt seconds. dt सेकंड में आगे चला गया ये vdt, इस एरिया के अंदर से जाता हुआ सारा लाइन्स ऑफ फ्लक्स को कट करके आ गया। कितना लाइन्स ऑफ फ्लक्स जा रहा था? That is v into area perpendicular to the magnetic field. So what is the area perpendicular to the magnetic field? You say this area, this length is L, this length is vdt, area is LVdt. What is the flux passing through it? You say it is v into LVdt. Oh, ये है। अच्छा, तो EMF कितना होगा? If this much d5 is cut in dt seconds, then EMF is d5 by dt, provided they are all in MK system. V is in Tesla, length is in meter per second, sorry, length is in meter, velocity is in meter per second. तो क्या मिल गया EMF? It is BLV. ओके, d5 by dt हो गया BLV। ये लास्ट क्लास का कंक्लूजन था, उसी को लेके आगे की क्लास बढ़ाएंगे आज। Let me change the case now. Now you will try to imagine. Suppose क्या केस हुआ अभी? केस टू। केस टू क्या है, थोड़ा गेस करते हैं। ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L moves with a speed or velocity v in a direction perpendicular to its length। तो ये प्रीवियस वाला केस से अलग क्या हुआ? सेम तो था। प्रीवियस केस में क्या था? V was perpendicular to the length, यहाँ पर भी हुई है, लेकिन प्रीवियस केस में और भी एक चीज था। क्या था? The magnetic field was perpendicular to V and length. Now I want to change the case. The angle between V and B is not 90 degree. It is theta, and theta is not equal to 90 degree. ठीक है? Now you have to imagine the case. Here is a magnetic field. मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप थोड़ा समझने की कोशिश करोगे तभी समझ में आएगा। ये विजुअलाइज करने वाली चीज है। यहाँ पर कोई एक कंडक्टर है। कैसा कंडक्टर है? जिस कंडक्टर का लेंथ L है, लेंथ L का एक कंडक्टर है। ये कंडक्टर कुछ भी वेलोसिटी में जा रहा है
और v कैसा है, परपेंडिकुलर टू द लेंथ है, परपेंडिकुलर टू द लेंथ। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। क्या कंडीशन दिया है, दिया है कि एंगल बिटवीन v एंड b इज थीटा। तो यू हैव टू विजुअलाइज नाउ, दिस इज द कंडक्टर, से द कंडक्टर इज मूविंग समथिंग लाइक दिस, इस डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, जैसे मेरा मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, दिस एंगल इज थीटा। व्हाट इज दिस पेंसिल रिप्रेजेंटिंग, द वेलोसिटी, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल थीटा है। प्रीवियस केस में क्या था, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री था, अब क्या हो गया, दोनों के बीच में एंगल थीटा है। फाइन फाइन। तो ये v वेलोसिटी में मूव कर रहा है, आई कैन नॉट शो v हियर क्योंकि v तो ऐसा है। क्या लिखेंगे, इन dt सेकेंड्स एरिया स्वेप्ट बाय दी कंडक्टर, ये कंडक्टर कितना एरिया स्वीप किया है बताओ। अगर इसका लेंथ l है और ये v स्पीड में जा रहा है, dt सेकंड में कितना दूर जाएगा, v dt, ये पूरा एरिया इज द एरिया स्वीप्ट बाय दिस, एंड यू क्लियरली सी दैट एरिया इज गोइंग टू बी lv dt। आई होप यू आर एबल टू फॉलो दिस। समझ में आया क्या। अब सोचो कि ये है कंडक्टर, ये कंडक्टर यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ पर आ गया। नाउ दिस इज द एरिया स्वेप्ट, दिस इज द एरिया स्वेप्ट बाय द कंडक्टर, बट इज दिस एरिया परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड तो बाहर की तरफ है, तो इसके अंदर से कितना फ्लक्स जा रहा है कैसे पता करेंगे। ये जो एरिया है ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल कर रहा है, तो ये एरिया का दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट होगा a sin थीटा, दूसरा होगा a cos थीटा। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, जो a cos थीटा वाला कंपोनेंट है, जो a cos थीटा वाला कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट के अंदर से तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, पैरेलल टू दैट, नो फ्लक्स इज पासिंग थ्रू इट, है कि नहीं। a cos थीटा वाला जो कंपोनेंट है उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है, तो इसके अंदर से कोई फ्लक्स नहीं जा रहा। लेकिन जो a sin थीटा वाला कंपोनेंट है, जो a sin थीटा वाला कंपोनेंट है उसके अंदर से फ्लक्स जा रहा है, तो हम क्या कहेंगे, लिखेंगे an, दैट इज एरिया नॉर्मल टू मैग्नेटिक फील्ड, कितना हो गया lv dt sin थीटा। ये आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा, आई कैन नॉट शो इट, आई कैन नॉट शो इट। हाँ थोड़ा सा ऐसे दिखा सकते हैं कि ये ऐसा गया, ये एरिया गया ऐसे, ये एरिया हो गया lv dt, एंड वी आर इंटरेस्टेड अबाउट दिस एरिया, दिस कंपोनेंट ऑफ द एरिया। समझ में आ रहा है क्या। दिस एरिया इज, आपको हो गए a b b डैश a डैश इज द एरिया दैट इज lv dt sin थीटा, क्योंकि ये डिस्टेंस lv dt, ये डिस्टेंस कितना था v dt। तो ये वाला एरिया कितना हो गया, कौन सा एरिया, आई एम टॉकिंग अबाउट द कंपोनेंट ऑफ द एरिया परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला जो एरिया है ये कितना हो गया, दिस एरिया इज कमिंग आउट टू बी lv dt sin थीटा। क्या ये सबको समझ में आ रहा है। यस सर, ये समझ में आया। तो D5 हमें करना क्या है, हमें निकालना है EMF निकालने का बस एक ही तरीका है, फैराडे बताया, MKS में सारा, MKS सिस्टम में सारा चीज ले लो, EMF इज d5 by dt। तो हमें देखना है कि इन dt सेकेंड्स, दिस इज द एरिया D5, फ्लक्स कट, हम बात कर रहे हैं dt सेकेंड्स का, फ्लक्स कट बाय द कंडक्टर कितना होगा, ये एरिया के अंदर से जितना फ्लक्स जा रहा है, इस एरिया को तो B परपेंडिकुलर है तो हो जाएगा B इंटू नॉर्मल एरिया, दैट इज BLV dt sin थीटा। ओहो, तो फिर EMF क्या हो, अब EMF निकालने में क्या देर है, रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स कट इज BLV sin थीटा। समझ में आ रहा है। सो द EMF इंड्यूस्ड इज BLV sin थीटा। क्या चीजें समझ में आ रहे हैं। यस सर, यस, लेट अस सी व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट केस। मैं केस बदल दिया, पहला केस में क्या था, V L B तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर थे, अब V और B के बीच में एंगल को मैं 90 से अलग कर दिया, थीटा कर दिया। चलिए एंगल फिर बदलते हैं, V इज परपेंडिकुलर टू लेंथ, सपोज आई गो फॉर ए केस 3, केस 3 को मैं विजुअलाइज कर दूंगा। सपोज आई हैव ए मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस, नाउ द वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू B,
बट ये जो बार है, द वेलोसिटी इज नॉट परपेंडिकुलर टू लेंथ। समझो कि सपोज द बार इज नाउ मूविंग इन सम डायरेक्शन लाइक दिस एंगल इज थीटा। और पहला वाला थीटा था, कंफ्यूजन हो जाएगा, ये एंगल को अल्फा लेते हैं, ये लेंथ है एल। सोचना है आपको। सो व्हाट यू सी एज शोन इन फिगर, V is perpendicular to B, but V is making some angle alpha with length of conductor। ठीक है, पहला केस में V और B के बीच में क्या एंगल था, थीटा। L और V के बीच में एंगल 90 डिग्री था। उससे पहला वाला केस में तीनों के बीच में एंगल 90 डिग्री था। अगर दूसरा वाला केस में से पहला वाला केस निकालने की कोशिश करेंगे, पहला वाला केस में B और V के बीच में एंगल 90 डिग्री था, तो थीटा को 90 डिग्री डाल दो, sin 90 इज पीएल। पहला वाला केस मिल गया आपको। नाउ वी वांट टू फर्दर स्पेसिफाई दिस वन। ध्यान से देखो, ये इवन क्लास 12 की बुक्स में भी नहीं है। व्हाट आई एम टेलिंग यू इज ये हाई फंडा थी। ठीक है, समझने की कोशिश करोगे, इमेजिन कर पाओगे तो चीजें बन जाएंगी, इमेजिन कर पाओगे तो चीजें बन जाएंगी। अच्छा, हमें क्या करना है, ईएमएफ निकालना है। ईएमएफ कैसे निकालेंगे, d5/dt। तो dt सेकंड में कितना नॉर्मल एरिया स्वीप किया पहले निकाल के, इफ और इन dt सेकंड। चलो निकलते सॉल्यूशन। इन dt सेकंड्स, dt सेकंड में होगा क्या कि आपका जो ये कंडक्टर है वो यहां से चल के कुछ यहां पे आ जाएगा। द कंडक्टर विल गो टू ए न्यू पोजीशन। ठीक है ना, चलो ये कंडक्टर यहां से कुछ यहां पे आ जाएगा, ऐसे चले जाएगा। तो आप कहोगे जब ये कंडक्टर इस पोजीशन से उस पोजीशन में गया, चलो देखते हैं कि क्या हो गया उसके साथ। ओहो, बात नहीं मान रहे। ठीक है, चल ये कंडक्टर आ गया है ऐसे। ठीक है, चलो ये कंडक्टर ऐसे चला गया dt सेकंड में। अच्छा, ये कुछ एरिया स्वीप किया है क्या? हाँ, एरिया स्वीप किया है। कौन सा एरिया? ये वाला एरिया। अच्छा, ये वाला एरिया स्वीप किया। क्या ये एरिया इज नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड? हाँ, नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो बस b इंटू एरिया कर देंगे, बस बाकी है क्या, एरिया निकालना। एरिया निकाल देंगे तो हमें मिल जाएगा फ्लक्स। b इंटू नॉर्मल एरिया विल बी फ्लक्स। d5 मिल गया, d5/dt विल बी ईएमएफ, है ना। तो बताओ dt सेकेंड में ये कंडक्टर कितना दूर गया होगा, v/dt, है ना। और मुझे पता करना है ये एरिया कितना है। थोड़ा समझने की कोशिश करना। मैं क्या करता हूं, ये जो एरिया है इसका ये ट्रायंगुलर पार्ट को भरा दिया, ये वाला पार्ट भरा दिया। तो फिर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे लाके उस ट्रायंगुलर पार्ट को जोड़ रहा हूं। बात तो एक ही हुआ। If I add this triangular part here, I find the area will remain same, है कि नहीं। उस ट्रायंगुलर पार्ट को यहाँ से भगा के यहाँ पे जोड़ दिया, ये पार्ट को निकाल के यहाँ पे जोड़ दिया। That means this area is same as this area। क्या सबको समझ में आ रहा है? ये जो एरिया था पैरेललोग्राम का, that area is same as this rectangle area इन dt सेकेंड। तो आप क्या कहोगे, an कैसे लिखेंगे, an नॉर्मल एरिया स्वीप्ट, नॉर्मल एरिया स्वीप्ट कितना इज इक्वल टू ये वाला एरिया, ये वाला एरिया। नॉर्मल एरिया स्वीप्ट विल बी इक्वल टू दिस एरिया, ये पूरा एरिया निकालना है। अच्छा, ये एरिया कितना है भाई, ये लेंथ है L, और ये लेंथ, व्हाट इज दिस लेंथ? अगर ये अल्फा है, ये भी तो अल्फा है, तो ये हो गया v/dt sin अल्फा, क्योंकि ये वाला होता है v/dt cos अल्फा, ये होगा v/dt sin अल्फा। सो नॉर्मल एरिया स्वीप्ट इज नथिंग बट L/v/dt sin अल्फा। समझ में आ रहा है, L/v/dt sin अल्फा। तो फिर व्हाट इज द फ्लक्स caught by the conductor is equal to B/L/v/dt sin alpha। तो व्हाट इज द EMF? EMF is
d phi by dt, and what is that? It is BLV sin alpha. देखो दो अलग अलग फॉर्मूला है। प्रीवियस केस में आया था BLV sin थीटा, यहाँ पर आया BLV sin अल्फा, बट डिफरेंस क्या है? वहां पर थीटा वाज एंगल बिटवीन V एंड B, हियर अल्फा इज एंगल बिटवीन L एंड V। L और V के बीच में एंगल। समझ में आया क्या? ये सारा पूरा चीज को थोड़ा सा दूसरे तरीके से भी हम सोच सकते हैं। हम जानते हैं कि कंडक्टर में ईएमएफ तब इंड्यूस होता है जब उसमें क्या होता है, जब उसके पास कोई लेंथ है परपेंडिकुलर टू V एंड B। तो ये कंडक्टर ये मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा था। हमें अगर पूछा जाएगा व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो हमारा काम बन जाएगा। अगर मैं लेंथ ऑफ द कंडक्टर परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड कहूंगा ये है L, तो इसका लेंथ परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी क्या हो जाएगा? ये अगर वेलोसिटी है, इसको परपेंडिकुलर होकर ये लेंथ हो जाएगा कंडक्टर का। दिस इज द लेंथ परपेंडिकुलर टू V एंड परपेंडिकुलर टू V, मतलब दिस एंगल इज 90 डिग्री। ये इसे जा रहा है, ध्यान रहे, दिस एंगल इज 90 डिग्री। अगर ये L है, ये अल्फा है, तो ये 90 माइनस अल्फा है, तो ये हो गया L sin अल्फा। तो हम पुराना वाला केस ले सकते हैं। इट इज एज गुड एज ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L sin अल्फा इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी V इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द लेंथ इन ए ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड। उसमें होता था BLV, यहाँ पर L की जगह L sin अल्फा होगा। सो व्हाट एवर यू आर डूइंग इज इनकंसिस्टेंट विथ प्रीवियस डिस्कशन। ये कोई नया चीज तो है नहीं, तो आपको ये चीजें समझ में आ गया। ठीक है, केस 3 भी हम लोग देखेंगे। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे और भी केसेस। केस 4। केस 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम डिफरेंस एंट्रांस पॉइंट ऑफ व्यूज। केस 4 बहुत सारे छोटे छोटे एंट्रांस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कभी कभार तो एंट्रांस में इसका फॉर्मूला वगैरह भी पूछ लेता है। सपोजिंग हमारे पास कोई एक कंडक्टिंग बार है। ओह, ऐसा नहीं, कंडक्टिंग बार ऐसा है। ये जो कंडक्टिंग बार है, ये क्या हो रहा है कि इट इज रोटेटिंग अबाउट वन एंड। ये कंडक्टिंग बार क्या हो रहा है? इट इज रोटेटिंग अबाउट वन एंड, ये एंड में घूम रहा है। ठीक है, और सपोज यहाँ पे कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है B, इसका लेंथ है L, ये मूव कर रहा है, ये कंडक्टिंग बार मूव कर रहा है। ठीक है, और कैसे मूव कर रहा है? You may not be knowing about circular motion, you may confuse. Suppose ये बार का ये end is moving with velocity V. V is the velocity of the free end of the bar. V is the speed of the free end of the bar. क्या लिखेंगे? ये A है, ये पॉइंट को B मानो, तो हम क्या लिखेंगे? एक कंडक्टर इज मूविंग अबाउट वन एंड इन एन एक्सियल uniform magnetic field, uniform axial magnetic field B। axial magnetic field का मतलब ये जो घूम रहा है उसका, ये कोई चीज ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो उसका एक्सिस क्या हुआ? एक्सिस इज दिस इज द एक्सिस, magnetic field is along the axis, that means perpendicular to plane of rotation। axial magnetic field का मतलब हुआ magnetic field perpendicular to प्लेन ऑफ रोटेशन। अच्छा, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, शायद ये आपको समझ में आएगा। टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ बार इज T, मतलब T सेकेंड में एक बार पूरा घूम लेता है। हमें EMF पता करना है, तो देखेंगे कि T सेकेंड में कितना फ्लक्स कट किया है ना। तो क्या लिखेंगे? फ्लक्स कॉट इन और एरिया स्वेप्ट इन T सेकेंड्स। एरिया, नॉर्मल एरिया स्वेप्ट इन T सेकेंड्स। कितना एरिया स्वेप्ट करेगा? अगर कंडक्टर बार का लेंथ L दिया है, एक बार घूम लेगा तो पाई L स्क्वायर, सो सिंपल। तो D5, द फ्लक्स कॉट इन T सेकेंड्स। फ्लक्स कॉट इन T seconds is nothing but
D, that is B into normal area, it is nothing but B pi L square. अच्छा ये तो व्हाट इज द ईएमएफ? इतना सारा फ्लक्स कट हुआ है t सेकंड में, ईएमएफ हो गया B पाई B L स्क्वायर बाई T, पाई B L स्क्वायर बाई T। हाँ, अगर आप T को इस V से रिप्लेस करना चाहोगे तो कर सकते हो। व्हाट इज T? T इज द टाइम फॉर वन रिवोल्यूशन। अगर ये V स्पीड में जा रहा है, कितना दूर जाना पड़ेगा? 2 पाई L। तो 2 पाई L डिस्टेंस को अगर वो V स्पीड में जाएगा तो T इज 2 पाई L बाई V। V स्पीड में घूम के एक बार वापस आ जाता है, T is 2 pi L by V। So if you want to express T in terms of V also you can do V is equal to 2 pi L by T, और T के जगह 2 pi L by V लिख सकते हो। And there is another term, I don't know whether you know it or not, V is also related to the angular velocity by the relation omega into L। अगर मालूम है तो आप यूज कर सकते हो। तो अगर उसी को डाल देंगे तो यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगा हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा, ऐसे करके आएगा। ठीक है, अगर आपको ये दोनों फॉर्मूला मालूम है, यू कैन मॉडिफाई द फाइनल आंसर टू अनदर कॉम्पैक्ट एंड वेल नोन फॉर्म दैट इज कॉल्ड हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। तो ये अगर ओमेगा रेडियन पर सेकेंड एंगुलर स्पीड में घूम रहा है, मतलब एक बार पूरा घूमने के लिए 2 पाई रेडियन से जाना पड़ता है, और ओमेगा स्पीड में जा रहा है तो कितना समय लगेगा? आप कहोगे t, कितना समय लगेगा? टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट रिवोल्यूशन, t विल बी 2 पाई बाय ओमेगा, ऐसा होता है। ये चीज अगर मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो कोई बुरी बात नहीं, आप इतने में खुश रहो, पाई डी एल स्क्वायर बाय टी। समझ में आया? सो अगर ये घूम रहा है तो ये हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा और पाई बी एल स्क्वायर बाय टी हो जाएगा उसका ईएमएफ। कब? केसेस को याद रखना, केसेस को याद रखना। केसेस क्या है? केसेस ये कि एक एंड में घूम रहा है, एल लेंथ का कंडक्टर है, एंड बी इज एक्सियल, बी इज एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कोई चीज घूम रहा है और उसका जो एक्सिस है, अलोंग दैट एक्सिस देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस नहीं है तो चलो सोचते हैं क्या होगा। लेट अस गो फॉर नेक्स्ट केस, केस 5। अब हुआ यूं है कि कोई एक बार किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है। कैसे घूम रहा है? सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, एक एंड में घूम रहा है। दिस इज व्हाट इज द सर्कुलर पाथ इन व्हिच द बार इज रोटेटिंग। और कैसा है वो बार, कैसे दिख रहा है? ये बार कुछ ऐसा दिख रहा है ना, ये बार कुछ ऐसा दिख रहा है, ये बार कुछ ऐसा दिख रहा है, ये ऐसा, अय्या काफी बड़ा हो गया। ये बार अभी ऐसा घूम रहा है सर्कुलर पाथ में, और इसका एक्सिस कैसा? ऑब्वियसली द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज समथिंग लाइक दिस, एक्सिस ऑफ रोटेशन इज समथिंग लाइक दिस। इसमें ये बार ऐसे ऐसे घूम रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? द मैग्नेटिक फील्ड इज मेकिंग सम एंगल थीटा, मैग्नेटिक फील्ड इज मेकिंग सम एंगल थीटा विथ द एक्सिस। नाउ द मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट एक्सियल। जो फ्लक्स कट होगा, बी का दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होगा बी साइन थीटा, एक होगा बी कॉस थीटा। बी साइन थीटा जो होगा वो सर्कुलर जो प्लेन है उस प्लेन को पैरेलल हो जाएगा, तो उसके चलते कोई फ्लक्स नहीं जाने वाला, फ्लक्स ना बी कॉस थीटा के लिए जाएगा। तो आप क्या कहोगे? इफ बी मेक्स एन एंगल थीटा with axis of rotation, then average EMF is equal to average EMF कितना हो जाएगा? इंड्यूस्ड। पहला केस में जो था वही होगा। पहला केस में क्या था? It was nothing but पाई बी एल स्क्वायर बाई टी। अब भी वही होगा, लेकिन क्या लिखेंगे? पाई बी के जगह लिखेंगे बी कॉस थीटा एल स्क्वायर बाई टी। थोड़े थोड़े से मॉडिफिकेशन से फॉर्मूला वगैरह बदल रहा है।
समझ में आ रहा है क्या? तो b के जगह क्या लिखेंगे? b cos थीटा। b cos थीटा क्या है? द कंपोनेंट ऑफ b इन दिस डायरेक्शन। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, कोई एक कंडक्टिंग बार है, ये बार का इधर का लेंथ l है, इधर का लेंथ 3l है, और ये जो दिस बार इज फ्री टू रोटेट अबाउट पॉइंट O, यहाँ पर हिंच किया गया है, उसको ऐसे घूम रहा है, मतलब बार जो है वो ऐसे ऐसे घूम रहा है, नॉट अबाउट वन एंड, बीच में किसी एक पॉइंट में, इधर को लेंथ l, इधर को लेंथ 3l। टाइम पीरियड दिया है t, मैग्नेटिक फील्ड इज एक्सियल एंड दैट इज इक्वल टू b। पूछा है potential difference between these two points, that is the effective EMF. Before we go for all calculations, I want to go back to the previous question. यहाँ पर जब ये बार ऐसे घूम रहा था, इसमें कितना EMF हुआ था? पाई bl स्क्वायर बाई t। वो तो समझ में आ गया, लेकिन कौन सा एंड हायर पोटेंशियल में था, कौन सा एंड लोअर पोटेंशियल में था? अगर हम इसके अंदर की कोई एक पॉजिटिव चार्ज के बारे में सोचेंगे, जब ये बार ऐसे घूम रहा था, ये पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा था, अगर पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा था तो B is inward, positive charge is moving in this direction, the force on the positive charge will be like this, that means this end was behaving as a positive charge, a positive end, this end was behaving as a negative end, मतलब जो EMF आप निकाले हो वो कुछ ऐसा था, है कि नहीं? EMF कुछ ऐसा था। फाइन, लेट अस कम बैक टू आवर क्वेश्चन। अब हम कहेंगे व्हाट इज EMF? EMF इन OB कौन है भाई? ये वाला हिस्सा OB। OB में क्या EMF होगा? OB कितना है? पाई BL स्क्वायर बाई T, क्योंकि एक छोटा सा बार है, एक एंड में घूम रहा है। अच्छा, और उसका EMF को देखेंगे इस सिचुएशन में, तो सोचो इसके अंदर की पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है, क्योंकि ऐसे घूम रहा है ना, जब ये ऐसे घूम रहा है तो ये ऐसे घूम रहा होगा, तो इधर जा रहा है, तो ये पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स किधर को आएगा? इधर को। ची वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड, फोर्स विल बी ए पुशिंग फोर्स, सो दिस एंड विल बिहेव एज ए पॉजिटिव चार्ज। सो एट दिस सिचुएशन आई वांट टू ड्रॉ द EMF, सो इट लाइक दिस। ये कौन हो गया? B है, ये O है। अच्छा, EMF इन OA कितना होगा? पाई B, उसका लेंथ का स्क्वायर, उसका लेंथ कितना है? 3l का स्क्वायर बाई T, इट इज 9 पाई BL स्क्वायर, 9 पाई BL स्क्वायर बाई T। हाँ, समझ में आया। और जो EMF होगा उसका पॉजिटिव एंड किधर को होगा? वो तो आप गेस कर सकते हो, पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स उधर को आएगा। दिस विल बी बिहेविंग एज द पॉजिटिव एंड, दिस विल बी बिहेविंग एज द नेगेटिव एंड। दिस इज ए बार ऑफ लेंथ 3l रोटेटिंग अबाउट वन एंड। तो जो EMF होगा वो कैसे दिखेगा? वो ऐसा दिखेगा, ये हो गया O, ये हो गया A। कितना EMF? दिस। ना एज ए होल अगर ये पूरा चीज को मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा तो ये कुछ मुझे ऐसे दिखने वाला है, ऐसे दिखने वाला है। ये है A, ये है B, ये है O। चलो हम इस EMF को कहेंगे EMF1, ये EMF2, ठीक है? तो आप क्या कहोगे? DA माइनस BB, ये हो गया EMF1। कौन सा? ये EMF इन द फर्स्ट वन। कितना हो गया ये? E1, ये E2। अच्छा, तो VA minus VB is the order in moving from B to A। जब आप B to A जाओगे, you are losing E1, gaining E2, so it is minus E1 plus E2। E2 कितना? 9 पाई BL स्क्वायर बाई T। E1 कितना है? पाई BL स्क्वायर बाई T। सिंप्लीफाई करो तो कितना मिल जाएगा? It is 8 पाई BL स्क्वायर बाई T, 8 पाई BL स्क्वायर बाई T। क्या चीजें समझ में आ रहे हैं? Is it understood? हाँ, तो क्या हो जाएगा इसमें? आंसर विल बी, द आंसर इज गोइंग टू बी 8 पाई BL स्क्वायर बाई T। मिल गया? इट इज 8 पाई BL स्क्वायर बाई T। क्या ये चीजें सबको समझ में आ रहे हैं?
यस, आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं कौन पहले आंसर बताता है। हाँ, क्या दिया है यहाँ पर? कोई एक बार है, ये बार का लेंथ कितना मालूम नहीं, क्या स्पीड में घूम रहा है वो भी मालूम नहीं है, क्या मैग्नेटिक फील्ड है वो भी मालूम नहीं है। अब ये पूछा है कि ये पॉइंट है ओ, ये पॉइंट को चलो मानते हैं ए और ये पॉइंट को मानते हैं बी, मतलब ओ ए जितना है ए बी उतना है। ए इज मिड पॉइंट इन फिगर शोन। A is the midpoint of bar OB। हाँ ठीक है, और ये बार घूम रहा है, कैसे दिया है कि बार घूम रहा है, ये बार ऐसे घूम रहा है, ठीक है। फाइंड ratio of EMF induced in OA to that in AB। OA में कुछ EMF इंड्यूस होगा, AB में कुछ EMF इंड्यूस होगा, दोनों का रेशियो चाहिए। सोचो सोचो। तो क्या दिया है, कोई बार एक एंड में घूम रहा है, इसमें ईएमएफ इसमें ईएमएफ का रेशियो निकालना है। मैं आपको दो अलग अलग तरीके से निकाल के दूंगा ताकि आपको समझ में आएगा कि कैसे निकालते हैं ईएमएफ, ठीक है। तो मैं सिमिलर क्वेश्चन दूंगा तो आपको समझ में आएगा। चलिए फास्ट मेथड देखते हैं। फास्ट मेथड में मैं देखना चाहता हूँ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ओए, ये तो सीधा सीधा मैं फॉर्मूला लगा दूंगा। ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ओए कितना लेंथ है मालूम नहीं है, ये मिड पॉइंट है तो इसको एल कहो, इसको एल कहो। अच्छा, तो इट इज पाई बी। फॉर्मूला को याद रखना, जेई मेन में डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछा था, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ईएमएफ, ये 3-4 साल पहले, पाई बी एल स्क्वायर बाई टी, ये हो गया ईएमएफ अक्रॉस ओए। और दूसरा वाला फॉर्मूला क्या था इन टर्म्स ऑफ ओमेगा, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। तो आप ओमेगा के साथ एक्वेंटेड नहीं हो तो मैं इन टर्म्स ऑफ टी आपको बता रहा हूँ। कुछ भी तो डाटा नहीं दिया, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई अस्यूम्ड मैग्नेटिक फील्ड, आई अस्यूम्ड द लेंथ, आई अस्यूम्ड द टाइम पीरियड, इट इज पाई बी एल स्क्वायर बाई टी। अच्छा, व्हाट इज द ईएमएफ अक्रॉस ओबी? हाँ, इसका तो लेंथ 2l है तो इट इज पाई बी 2l का स्क्वायर बाई टी। सो व्हाट यू फाइंड, पूछा है ईएमएफ अक्रॉस कौन सा पार्ट, एबी। एबी में क्या होगा? अच्छा, ये दोनों पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस मालूम है कितना, 4 पाई बी एल स्क्वायर बाई टी। ये दोनों पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस मालूम है पाई बी एल स्क्वायर बाई टी। तो आप जानते हो इसमें अगर ईएमएफ का पोलैरिटी ऐसे ही होगा तो इसमें भी पोलैरिटी ऐसे ही होगा, और दिस ईएमएफ प्लस दिस ईएमएफ इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ। टोटल ईएमएफ इज 4 पाई बी एल स्क्वायर बाई टी, यहां से यहां तक पाई बी एल स्क्वायर बाई टी। तो एबी में क्या ईएमएफ होगा, इट विल बी 4 पाई बी एल स्क्वायर बाई टी माइनस पाई बी एल स्क्वायर बाई टी, है ना, एंड दैट इज कमिंग आउट विद 3 पाई बी एल स्क्वायर बाई टी। रेशियो चाहिए था ईएमएफ अक्रॉस ओए बाय ईएमएफ इन एबी इज इक्वल टू 1/3। ये हो गया, बट लेट अस सी इट इन ए डिफरेंट मेथड आल्सो। सेकंड मेथड, हमें पूछा गया है ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द आउटर हाफ टू द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द इनर हाफ, और ये घूम रहा है, ये लेंथ L है, ठीक है, और ये लेंथ L है। तो ये पॉइंट O था, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ऐसा करके A इज द मिड पॉइंट, और ये घूम रहा है, घूम रहा इन t सेकेंड्स। फ्लक्स कॉट बाय OA कितना हो जाएगा,
ये OA से कितना फ्लक्स कट होगा, OA से कितना फ्लक्स कट होगा, जितना इसके अंदर से जा रहा है, ये सर्किल के अंदर से जो फ्लक्स जा रहा है उसी को कट करेगा। कितना जा रहा है, B इंटू पाई एल स्क्वायर, B इंटू पाई एल स्क्वायर, कितने समय में, t सेकेंड में। तो EMF कितना हो जाएगा, EMF अक्रॉस OA इज इक्वल टू फ्लक्स कट बाई टाइम पाई बी एल स्क्वायर बाई टी। हाँ, ये तो पहले भी हम लोग निकाले थे। अच्छा, इन टी सेकेंड्स फ्लक्स कट बाय ए बी कितना हो जाएगा, इट इज इक्वल टू बी इंटू which area, you have to see the area swept by or the flux caught by AB। देखो ये है, मतलब इस एरिया के अंदर से जो फ्लक्स जा रहा है उसी को कट कर रहा है। So what is this area? It is pi 2l square minus pi l square. So B into pi 2l का square minus pi l square is equal to कितना आया? It is 3 pi b l square। क्या चीजें समझ में आ रहे हैं? क्या ये चीजें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस यस। तो फिर EMF बाई AB, EMF, फिर आंसर क्या हो गया? आंसर कम्स आउट टू बी द रेशियो इज EMF इन OA बाय EMF इन AB इज इक्वल टू 1:3। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया है? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कुछ एक एल शेप्ड बार है, ये एल शेप का बार है, ये दिया है 4 मीटर और ऐसा एक लेंथ दिया है, ये लेंथ दिया है 3 मीटर। ये एल शेप का बार एक एंड में घूम रहा है और ये कैसे घूम रहा है? ऐसे घूम रहा है। मैग्नेटिक फील्ड है B, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इज B। पूछा क्या है आपको? पूछा है कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस और EMF इंड्यूस्ड अक्रॉस AB। तो क्या पूछा है यहाँ पर? ए एल शेप्ड बार, एल शेप्ड कंडक्टिंग बार is moving in a magnetic field, is moving in a magnetic field with time period of 4 सेकेंड, 4 सेकेंड में एक बार घूम लेता है। Find EMF induced in AB, bit number 2, in OB में कितना EMF होगा, AB में कितना EMF होगा। ये दोनों चीज आपको निकालने के लिए कहा गया है और आप लोग निकाल सकते हो। फॉर्मूला तो ही है, t सेकेंड में कितना फ्लक्स कट किया, d phi by dt is going to be the EMF, d phi by dt is going to be the EMF। आपको निकालना है dt सेकेंड में, टाइम पीरियड तो दिया है t ना, t सेकेंड में कितना फ्लक्स कट किया, कितना फ्लक्स कट किया, एरिया स्वेप्ट इनटू b। You get the flux cut. Once you get the flux cut, then you can find out the EMF. Fine, try out. बस एक दिया गया है कि एल शेप बार है, साइड लेंथ 4 है, ये 3 है, घूम रहा है, कुछ टाइम पीरियड 4 सेकेंड दे दिया गया है। पूछा है क्या है EMF, क्या है EMF। तो हम कहेंगे AB में क्या होगा, AB में पहले बाद में निकालेंगे, पहले OB में निकालते हैं। सॉल्यूशन में देखेंगे EMF अक्रॉस OB, EMF अक्रॉस OB जब घूम रहा है ये कितना एरिया स्वीप कर रहा है। आपको समझ में आना चाहिए कि एक बार घूम लेगा तो ये, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं, अगर हम कहेंगे ये कोई एक वायर है और ये कोई एक दूसरा वायर है और
पता चला ये भी ऊपर गया बाई ए डिस्टेंस d और ये भी ऊपर गया बाई ए डिस्टेंस d, कौन ज्यादा एरिया स्वीप किया, 1 और 2? सेम एरिया स्वीप किया। ये आपको कंसेप्ट में क्लियर होना चाहिए, ये जितना एरिया स्वीप कर रहा है ये उतना ही एरिया स्वीप कर रहा है। अच्छा ये बात है, तो हम कहेंगे एक बार घूम के आने में ये वायर जितना एरिया स्वीप करेगा ये भी उतने ही एरिया स्वीप करने वाला है। कौन? ये बार का लेंथ कितना है, 5 मीटर है। अच्छा तो ईएमएफ कितना हो जाएगा, पाई बी एल स्क्वायर बाय टी दिया है 4 सेकेंड, सो इट इज 25 और पाई 25 बी by 4 volt. It is the EMF across OB. EMF across पूछा गया OA में क्या हो जाएगा, पाई बी 4 स्क्वायर बाई 4, इट इज पाई 16 बी बाई 4। क्यों इसे लिख रहा हूं, क्योंकि माइनस करना है। EMF इंड्यूस्ड इन AB में कितना EMF इंड्यूस्ड है, तो आप कहोगे this EMF plus this EMF is equal to this EMF potential difference, this potential difference plus this potential difference is equal to this potential difference। ये है 16 पाई बी बाई 4, ये है 25 पाई बी बाई 4, तो ये कितना हो जाएगा, इट इज 25 पाई बी बाई 4 माइनस 16 पाई बी बाई 4 इज 9 पाई बी बाई 4 वोल्ट। क्या सबको समझ में आया? Is it understood? Yes, sir. Yes.